Namaste. I'm JVN Professor Dr. Sapna Gehlot. My discipline is Political Science. My department is Humanities and Social Science, Faculty of Education Methodology from JOT Vidyapeeth University. See, in the last session में आपने देखा था कि what is Constitution. क्या देखा था? What is Constitution. Constitution के बाद आपने देखा था Types of Constitution. टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट सेशन में? हमने देखा था जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या होता है, रिटन भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैक्सिबल होता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और भी है, जैसे मैंने आपको देखा कि इट इज फेडरल भी आता है और यूनिटरी। जब आपने रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा तो उसके कुछ मेरिट्स भी हमें पता चले और उनके कुछ डिमेरिट्स भी हमें पता चला। आज हम डिस्कस करेंगे एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो वुड यू हैव सीन कि अबाउट द मीनिंग हमने देखा किसका मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन अनरिटन देखे, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे। आज है इट इज़ अ रिजिड constitution. Rigid constitution are these which require a special procedure for the amendment. So what is the main thing? Rigid constitution एक वो constitution है जिसमें कि आपको एक procedure होता है amendment के द्वारा change करना। See the constitution अगर आप change कर रहे हैं तो उसका जो procedure है it is not the easy one. ये flexible नहीं है, वो क्या है, rigid है। एक amendment का जो procedure है it's quite tough, it's very एक procedure है उसके अलग अलग है, it's somehow tough. The Constitution of USA, Australia, Switzerland are the best examples of a rigid constitution. So what we have seen कि जो rigid constitution क्या है, इसमें जो change करना होता है constitution का जो procedure होता है वो इतना easy नहीं होता है, somehow rigid होता है। amendment का जो procedure होता है वो भी काफ़ी tough होता है। For example USA का जो constitution है it is a written constitution है और उसके साथ साथ क्या है वो rigid भी है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। The rigid constitution is above the ordinary law and can be changed by a procedure. So you can say कि इसका जो procedure है is above this, not a common law में नहीं हो सकता, and can be changed by a procedure which is different from the procedure of ordinary law and this making it difficult to change. यानी अगर आप किसी constitution को इसको change करना चाह रहे हैं rigid constitution का तो it is above the ordinary law और इतना easily उसको change नहीं किया जा सकता। और उसका जो प्रोसीजर इस तरह से है कि दो इट इज अबव ऑर्डिनरी लॉ सो ऑब्वियस दिस मेकिंग इट डिफिकल्ट टू चेंज। द ऑब्जेक्टिव इज द emphasis that the constitutional law embodies the will of the sovereign and it should be treated as a sacred document. So what we have seen कि जो objective है इस rigid constitution का वो ये है कि that the constitutional law embodied the will of the sovereign and it should be treated as a sacred document. Next. A rigid constitution possesses the qualities of stability and the performance. So this is the main feature of this constitution is this, यानी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन फीचर हमें देखने को मिल रही है जो उसकी क्वालिटी है, सबसे पहले देयर इज अ स्टेबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेक्स्ट इज द परफॉर्मेंस। बीइंग अ परफॉर्मेंस एंड बीइंग अ स्टेबिलिटी, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चेंज करना है तो वो बहुत तरीके से होता है और जो डिसीजन लिया जाता है वो बहुत सोच समझ के लिया जाता है। चूँकि सोच समझ के आता है एक तरीका थोड़ा टफ है लेकिन इससे एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। A rigid constitution is essentially a written constitution. So what we have seen कि जो rigid constitution है वो क्या है, एक written constitution है which is the creation of experience and learned people. So what you have, तो आपने क्या देखा कि rigid constitution है possess कर रहा है that it has a quality of the किसकी, stability की and the performance. And rigid constitution essentially एक written constitution है। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर constitution rigid है तो obvious वो कहीं ना कहीं written होगा ही, and which is a creation of the experience and the learned
पीपल, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिटन के साथ के द्वारा क्या हो रहा है, जिसको बना रहे हैं रिजिड को, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही विद्वान या आप कह सकते हो लर्नड पीपलों के द्वारा बनाया जाता है. Thus, it is a symbol of the national efficiency. People regard it as a sacred document and they're ready to work according to its provisions. So what we have seen कि चूंकि it is based on the stability, it is creation of the experience and the learned people, तो हम ये कह सकते हैं कि it is a symbol of the national efficiency. ऑफ नेशनल एफिशिएंसी, यानी राष्ट्रीय एफिशिएंसी एक तरह की क्वालिटी है, यानी जो संविधान बनता है वो बहुत सोच समझ के बनाया जा रहा है. It has its efficiency in that constitution. People regard it as a sacred document and they're ready to work according to its provisions. चूँकि ये बहुत सोच समझ के और थोड़ा सा टफ और रिजिड बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं उसके जो जितने भी इसके आर्टिकल्स हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजंस. नेक्स्ट, a rigid constitution on safeguards legislative violation. Constitution should not be a plaything in the hands of a legislature. चूँकि ये एक rigid constitution है, तो ये easily change नहीं किया जा सकता, यानी legislature भी इसको बहुत सोच समझ के change किया होता है. A rigid constitution safeguards fundamental rights effectively. So what we have seen कि जो rigid constitution है वो safeguard करते हैं किसको, fundamental rights. अगर आपके पास flexible होगा तो समय के अनुसार change करता रहेगा, लेकिन आपके fundamental rights हैं, आपके कोई सी भी rights हैं जो आपके constitution में आ रहे हैं, तो rigid से आप उसको easily change नहीं कर सकते. A rigid constitution protects the rights of the minority. The next thing is कि चूँकि rigid constitution का procedure थोड़ा complicate है, थोड़ा tough है, तो it protects the rights of the minority, यानी easily according आप change नहीं कर सकते. इसमें किसी selfish interest की बात नहीं होती, about it is the interest of the nation. Next, a rigid constitution is free from dangers of the temporary popular passion. Because of complex amendment procedure, the constitution may not be swept away by the emotions of the people, which in most of the cases are not based on the wisdom and the reasoning. So what we have seen कि जो rigid constitution बनता है वो अपनी भावनाओं से नहीं, बिल्कुल fact और बहुत reasoning बातों से बनता है. सिर्फ जो चीज़ fact हो, easily बहुत सोच समझ के उसमें बदलाव किया जाता है. इट इज़ नॉट ईजी कि हाँ भाई भावनाओं से या कुछ ऐसे लग के जरा से आप चेंज हो जाओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. So a federal setup of government essentially needs a rigid constitution for the safety of the rights of the unit as well as for the strength and integration of the federation. So what you have seen, जो federal setup of the government का essentially needs a rigid constitution, यानी जिस country में फेडरल सिस्टम होता है, लाइक कहाँ पे होता है, यूएसए में. अब चूंकि गवर्नमेंट क्या होता है, सेंटर पर भी होता है और यूनिट पे भी होता है, ऐसे में एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल दोनों के रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, जो सेंटर है और जो यूनिट है उनके पावर्स को बहुत उनको बैफरकेटेड कर रखा होता है, इसलिए बीच में किसी का कोई इंटरफेयर नहीं होता. तो इससे कि जो सिस्टम चल रहा होता है गवर्नमेंट का वो बहुत ही स्मूथ वर्क करता है. Under rigid constitution, units of federation feel secure and at the same time there is a check on their activities and also in order to stop them from violating each other's jurisdiction. So you have seen चूँकि jurisdiction है सबका, एक rigid constitution है, सब unit अपना work कर रहा है, center अपना work कर रहा है, तो work एक कहीं ना कहीं federation में क्या होती है, security होती है कि center अपने पावर्स को जानता है, यूनिट अपने पावर्स को करता है और बीच में इंटरफेयर नहीं होता. अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ जनरली फ्लैक्सिबल में क्या होता है, थोड़ा आप समय के अनुसार कुछ चेंज कर देते हैं, बीच में इंटरफेयर इसमें नहीं है. रिजिड किसी चीज़ को आप इजीली नहीं कर सकते. एंड इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि देयर इज अ चेक ऑन देयर एक्टिविटीज एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू स्टॉप देम फ्रॉम वायलेटिंग ईच अदर ज्यूरिस्डिक्शन. क्योंकि आप रिजिड है कि भाई ये यूनिट ये काम कर रही है, यानी जो स्टेट है वो अपना काम कर रहा है, सेंटर अपना आप कर रहा है, दूसरे को आपको इंटरफेयर नहीं कर सकता. उनके रिजिड है पूरे कि भाई आपको ये राज्य को ये काम करना है और केंद्र को ये काम करना है, बीच में एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना है.
नेक्स्ट, demerits of the rigid constitution. After seeing the, आपने देखा ये उसके major qualities रही, उसके merits है. अब come to the demerits of rigid constitution. Sometimes changes in the constitution because inevitable, but a rigid constitution cannot be amended easily. देखिए हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रो होते हैं और कॉन्स होते हैं. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिटी बहुत है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले स्टेबिलिटी है. सबसे चीज़ क्या आती है? स्टेबिलिटी मेन इंपॉर्टेंट थिंग है. आपस में कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं होती, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है. एक कमी क्या है? चूँकि प्रोसीजर थोड़ा टफ है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अगर एज ए नीड ऑफ एन आवर अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो ईजिली नहीं होता. तो लोगों में कहीं ना कहीं एक तरह का कह सकते हैं कि दे विल एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है, एंड दे गेट राइज unsatisfaction against this thing. So जब कई बार हम देखते हैं कि because of inevitable a rigid constitution cannot be amended easily. The framers of constitution have already foreseen the future. A rigid constitution is not suitable for a progressive nation where changes take place frequently. यानी जिसने भी constitution बनाए हैं ये rigid के, ये चीज़ को समझते थे. वो ये जानते हैं कि हम change तो करना चाहते हैं, लेकिन ये frequent change नहीं हो सकता. Like अमेरिका में आप देखें rigid constitution है, articles भी कम है, लेकिन वो success है क्योंकि जो बनाए गए हैं वो fix है. Flexible हम समय के अनुसार change करेंगे, ठीक है, but easy way में कई बार सेल्फिश इंटरेस्ट हो जाए वो पॉसिबल नहीं होता. तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि एक तो ये इनएविटेबल है, दूसरा इट कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली, और फ्रीक्वेंटली भी पॉसिबल नहीं हो पाता. यानी अगर आपको लगता है इट्स ए नीड ऑफ एन आ, और वो उसको पूरा नहीं कर पाते. Difficult to change. The next is difficult to change. So what you say, a rigid constitution has a formal strict process for amending and making it difficult to change. चूँकि इसका प्रोसीजर इतना टफ होता है कि उसको एक इजीली आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाते. एंड लेस प्रोग्रेसिव, चूँकि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कंजर्वेटिव, सो इट इज़ लेस प्रोग्रेसिव. अंडरस्टूड है, क्योंकि आप तुरंत उसको चेंज नहीं कराते. किसी कंट्री की डिमांड है, लोगों की डिमांड है, तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं वहाँ पे नुकसान हो जाता है टू बीइंग अ लेस प्रोग्रेसिव. नेक्स्ट, इट कैन नॉट अडेप्ट टू चेंज. इसका जो नेक्स्ट इसकी डिमेरिट आ रही है वो ये है, अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. फ्लैक्सिबल में आप समय के अनुसार चेंज कर सकते हैं, लेकिन रिजिड में आप हर चीज़ें चेंज नहीं कर सकते. कंट्री का जो सिस्टम है, जो सोशल सेटअप है, जो इकोनॉमिक सेटअप है, इट इज़ नॉट, ऐसे नहीं कि तुरंत आप चेंज करें. जो प्रोसीजर है वो भी बहुत टिपिकल है. सो कई बार परेशानी हो जाती है कि हम उस चीज़ों को अडेप्ट करके फॉलो करें. नेक्स्ट, मे रिजल्ट इन रिवॉल्यूशन. ये किसका नुकसान है? अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में रिजल्ट इन अ रिवॉल्यूशन. वाई? क्योंकि जब लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं होगी, उनका सिस्टम, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज नहीं हो पा रहा है, एक होना चाहिए जितना चेंज अकॉर्डिंग टू नीड, तो कहीं ना कहीं लोगों में डिससेटिस्फैक्शन होगा, एंड डिससेटिस्फैक्शन लेड टू द रिवॉल्यूशन इन द कंट्री. सो द ऑपोजिट ऑफ अ रिजिड, इसलिए हम बोलते हैं कि जो ऑपोजिट है ऑफ अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है. द टर्म्स रिजिड एंड फ्लैक्सिबल सिग्निफाई हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिवाइज्ड and how will they can be adjust to changing circumstances. So what you have seen कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का जो अगेंस्ट, उसकी जो अपोजिशन में वो क्या है? फ्लैक्सिबल है, और ये समय आने के अनुसार है. तो अगर आप रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे तो हमने क्या देखा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. आप देखेंगे कि लाइक जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, उन सब के रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को फोकस किया है. लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो सिस्टम के अनुसार सेटअप करके रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं सक्सेसफुल हो रहा है. थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. नमस्ते.